a warm welcome to It's My Life, the program that brings you face to face with country's top politicians. Behind me you see is this great Jhansi fort, bearing testimony to so many skirmishes and battles in the past. We bring you to this historical city of Jhansi with one of the most intriguing personalities of the BJP. She's been known as a firebrand. Sadhvi is currently the Union Minister for Water Resources and Ganga Rejuvenation, and most significantly, she's a Lok Sabha MP of Jhansi. Much has been written about her, but people still want to know about her life. Let's meet the saffron-clad Uma Bharti on It's My Life. Bharatiya Janata Party's famous leader in Ochre, Uma Bharti. Born on May 3, 1959, in Madhya Pradesh's Dunda village in Tikamgarh, the firebrand Sadhvi hails from a lower middle-class peasant family. She has barely gone to school, but since her childhood has been popular for her religious discourses. अरे ये माया तो महाटकनी है। आज जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा कि माया क्या सद है, बोले नहीं। तो पूछा माया असद है, तो बोले नहीं। तो पूछा फिर माया सदसद है, तो बोले नहीं। तो पूछा माया सदसद उभय भिन्न है, तो बोले नहीं। तो फिर पूछा माया क्या है, बोले अनिर्वचनीय है। उसके बारे में तो कह ही नहीं सकते हैं कि वो क्या है। With the support of Vijay Raje Scindia, Bharti became involved with Madhya Pradesh state BJP while still in her 20s. In 1984, she contested Lok Sabha elections for the first time, but lost in the Congress wave that followed the assassination of Indira Gandhi. In 1989, she won the Khajuraho Lok Sabha constituency and retained the seat in the elections of 1991, 96 and 98. Bharti rose to national prominence when she became one of the major faces of the Ram Janmabhoomi movement. Her fiery speeches are credited for helping the movement achieve the momentum that it did. Bharti was anointed the chief ministerial candidate of the BJP for the 2003 assembly polls in Madhya Pradesh. In August 2004, only after a year in office, an arrest warrant was issued against Uma Bharti in connection with the 1994 Hubli riots, forcing her to step down as CM. In November 2004, she had a public spat with senior BJP leader L.K. Advani during a meeting at the BJP headquarters, which led to her suspension from the party, which was revoked a few months later reportedly at the insistence of the RSS. As she continued to publicly defy the BJP High Command, insisting that she replace Shivraj Singh Chauhan as the Chief Minister of Madhya Pradesh, Bharti was eventually expelled. She floated her own political party, the Bharatiya Janshakti Party. She was re-inducted into BJP in June 2011 and since then has been no looking back. Rajya Sabha TV's It's My Life crew caught up with the Sadhvi's life and routine. Mornings begin with a huge Janta Darbar where she tries to resolve the problems of the people in her constituency. Didi, as she is popularly known as, tries not to leave anybody discontented. A quick morning darshan at her favorite temple before she leaves home.
In the heart of Jhansi, Uma Bharti is carrying on important tasks of her government, especially as far as the Modi government's flagship programs are concerned. Uma Bharti is playing a lead role in protecting the environment of this historical town of Jhansi. She ensures that the message of Swachh Bharat goes to every house. हम झांसी नगर को स्वच्छ रखेंगे। बहुत गंदा रहता है झांसी, बहुत भयंकर वाला रहता है। झांसी के नाम से एक गौरव का एहसास होता है। आप देख सकें तो मैं सारी दुकानों का उद्घाटन खुद आकर के करूंगी और मैं लोगों को अपील करूंगी कि वो उन फलों को बेचें। While she's on the job, she ensures we get a slice of Jhansi's history as well, and hence takes us to Rani Lakshmibai Palace. ये जो महल है, ये कितना महत्वपूर्ण रहा है और आप बचपन में आपकी कैसी यादें जुड़ी है इस महल के साथ? मैं जब सांसद बनी तो मैं इस महल को देखने आई और जब मैंने इसको देखा तो मुझे रानी की बहुत याद आई। अच्छा। और मेरा उनके लिए दिल भरे आया, क्योंकि उसकी शादी हुई तो वो 9 साल की थी, उसके बालक हुआ तो वो 16 साल की थी, और जब वो विडो हो गई तो वो 18 साल की थी, और जब वो शहीद हो गई तो वो 23 साल की थी। तो मैं उसकी पूरी भावनाओं को इमेजिन करती गई कि कितनी छोटी उम्र से लेके उसने कितने संघर्ष किए, और अंत में उसका संघर्ष का जो अंत उसने किया उसमें झांसी पूरे विश्व में ऊर्जा के संचार का सेंटर बन गई अंत में। Right across the road opposite the Rani Palace is a place Uma Bharti loves to frequent. Check this out. दीदी, बहुत कम लोगों को पता है कि आपको इतनी चाट पसंद है। मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ। मैं चाट बहुत खाती हूँ और मैं बहुत मशहूर दुकानों पर जाके नहीं खाती, क्योंकि उनका नाम बड़ा होता है और स्वाद छोटा होता है। यहाँ की तो एक नारायण चाट बोलते हैं, बहुत फेमस है। होगी, लेकिन मेरे को तो इनकी चाट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चाट में आप खाते रामेश्वर चाट। चलिए रामेश्वर जी, आपके यहाँ दीदी आई हैं, मुझे ये बताइए चाट में सबसे ज़्यादा आप क्या खाती है? गोलगप्पे? हाँ, गोलगप्पे। और आलू टिक्की? ना, सिर्फ बिल्कुल गोलगप्पे पसंद नहीं है। अच्छा, चाट खाते खाते व्यूअर्स को क्या बोलना चाहती हैं? कुछ बोलना चाहती हैं? जिंदगी भी खट्टी मीठी होती है। We're now heading towards her hometown Tikamgarh, undulating terrain, the motorcade crisscrossing through the forest area. We get to meet Uma Bharti's family members. And so do her near and dear ones. मुझसे तो वो 13 साल छोटी है उम्र में। तो काफ़ी अंतर है उम्र में। तो गांव में ही रहती थी, मैं तो यहाँ पढ़ता था टीकमगढ़ में, वो डूडा गांव में रही। इसके बाद मैं नौगांव में पढ़ने चला गया कॉलेज में। इसके बाद मैं नौकरी में चला गया छत्तीसगढ़। उस वक्त वो विदेश में चली गई। साथ बहुत कम, मतलब जैसे माह में 2-3 दिन साथ रहते थे। दीदी किचन में काम करती हैं नहीं? कभी मौका लगता है तो? मौका नहीं लगता, मौका नहीं लगता, लेकिन मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। अच्छा, जब कुकिंग करने का मन होता है तो क्या बनाती हैं नॉर्मली? खीर, अच्छा, आलू की सब्जी, क्या बात है, और आलू का हलवा। आलू का हलवा। ओके, मुझे तो ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है अभी।
I'm right now with Uma Bharti's bhabhi. Let's talk to her what she has to say about her sister-in-law. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उमा जी के साथ? नॉर्मली भाभी और जो सिस्टर-इन-लॉज होती हैं उनकी पटती नहीं है, आपकी रिलेशन कैसी है उनके साथ? नहीं, हमारी बहुत अच्छी पड़ती हैगी। अच्छा, हाँ, हम लोग दोनों बस नैन भाभी की तरह ही तो रहते हैं, पर बहुत अच्छी पड़ती हैगी। ओके, हाँ। कभी नोक झोंक नहीं होती? ना ना। उमा भारती से शी इज अ चमची ऑफ अ भाभी। तो दीदी इसका मतलब क्या हुआ ये तो बता दीजिए उधर देखकर। ये मेरी जो भाभियां हैं ये प्रसन्न रहेंगी तो मुझे ठीक से खिलाएंगी और मेरे भाइयों को भी ठीक से खिलाती हैं, तो इसलिए मैं तो अपनी सारी भाभियों की चमचागिरी करती हूँ। आपको घर में बीनू बोलते हैं ना दीदी? बिन्नू। बिन्नू, ऐसा क्यों? आपका बचपन का नाम है? नहीं, छोटी ननद को बिन्नू बोलते हैं अच्छा, ओ, बुंदेलखंडी में। अच्छा, मैं उनके भाई की छोटी ही बहन हूँ ना। ओके ओके ओके। लेकिन आपके घर पे आके बहुत अच्छी सी एक फीलिंग हो रही है, लेकिन एक परसेप्शन होता है कि जो संन्यास ले लेता है वो अपने घर वालों से मिलता नहीं है। आप इस परसेप्शन से मुक्त हो जाइए और इस सबसे मेरे से कुछ मत पूछिए। सन्यासी होना नहीं होना ये मेरे गुरुजी का काम है। अच्छा, ये विषय मैंने उनको दे रखा, मैं आप लोगों को नहीं दूंगी ये विषय। चलिए ठीक है। But Uma stays very short as she has to proceed for her native Dunda village, which has been her older home. It's this place where she spent her childhood. It's a special day today where the entire village gets ready for a village feast. Here at Uma Bharti's native village and with her extended family. I'm told that she has 4 bhabis who have their sons and daughters. So it's a very big family. Let me talk to a few of them. आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता, आप सबसे बड़ी भाभी हैं? नहीं, हम भाभी नहीं, हम भतीज बहू हैं। आपके जीवन में उनका क्या योगदान है? वो हमारे जीवन का आधार है। Bharti can be seen in lighter moments like these. Uma ensures that she never makes a speech in her village, but she does give a patient hearing to the problems of her people. तो आपने गांव किस उम्र में छोड़ा? 6 साल की हूँ। अच्छा, 6 साल की उम्र में आपने गांव छोड़ा। और आना जाना बना रहा मेरा, लेकिन मेरी ज़िंदगी 6 साल की उम्र के बाद बहुत सुविधाओं से युक्त हो गई। आई हैड ए वेरी लग्जरियस चाइल्डहुड। तो इसलिए मेरे को जो भी स्मृति है वो 6 साल की उम्र तक की है कि गांव में बहुत डिस्पैरिटी थी, बहुत अन्याय था, बहुत शोषण था, बहुत गरीबी थी। लेकिन जब आप गांव छोड़ के जा रही थी तो अक्सर माता पिता डर जाते हैं कि अरे लड़की कहाँ बाहर नहीं, जाएगी। मैं गांव छोड़ के कहीं नहीं जा रही थी, मैं तो बस यहाँ से चली जाती थी फिर आ जाती थी। और अधिकतर परिवार के लोग, बड़े भाई साथ जाते थे, कई बार माँ भी साथ जाती थी। अच्छा। तो ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि मुझे कोई वियोग महसूस हुआ हो। वो तो मुझे तब हुआ जब मैं विदेश गई। अच्छा, भारत से बाहर विदेश कितनी बड़ी थी जब आप पहला आपका विदेश दौरा? 16 साल की। अच्छा, और किस सिलसिले में? प्रवचन करने गई। अच्छा, तो क्या विदेश के दौरों में आपको लगा कि आपका जो पूरा जीवन है वो किसी एक एवोल्यूशन से गुजर रहा है? कभी आपको ऐसी फीलिंग हुई? 16 से 21 साल की उम्र तक मैं लगभग 4-5 साल घूमी हूँ। मैं करीब 80 देशों में गई हूँ। तो उसमें जो वो समय होता है जब आदमी बड़ा हो रहा होता है। आई वॉज ग्रूमिंग एज ए टीनेजर।
तो उसका इन्फ्लुएंस तो हुआ मेरे माइंड पे। अच्छा। हाँ, और उस इन्फ्लुएंस का परिणाम ये निकला है कि मेरी थिंकिंग एकदम फ्री हो गई उस समय पे। और जब मैं यहाँ गांव में आई तो यहाँ पर भी गांव में जो परिवेश में देखती थी, मैं उसमें मेरा सबमर्जेंस नहीं होता था। मैं उसको देखती थी और उसके बारे में सोचती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चेंज आया, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, वो आया रोडेशिया में, जिसको अब जिम्बाब्वे बोलते हैं। वहाँ पर संघर्ष चल रहा था आज़ादी का, साउथ अफ्रीका और रोडेशिया में। और मैं स्पेशल परमिशन से वहाँ भेजी गई थी, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पर लिखा था कि हम इन दोनों देशों में नहीं जा सकते। लेकिन मेरे को एग्जम्पशन मिले थे दोनों देशों में जाने के, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मेरी मांग की थी। अच्छा। वहाँ के प्रवासी भारतीयों, उस समय वहाँ आज़ादी का संघर्ष था, साउथ अफ्रीका में और जिम्बाब्वे में। और वहाँ ज़बरदस्त शोषण था गरीबों का। और वहाँ मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी जो उस समय पे प्रतिबंधित थी, रूट्स, एलेक्स हेली की लिखी हुई। उसका मेरे मन पर जो असर पड़ा, आप यकीन नहीं करेंगी, मुझे जिम्बाब्वे का गांव, साउथ अफ्रीका का गांव और अपना गांव एक जैसा लगा। After the exchange of pleasantries, it's time to bid goodbye. Living life of a Sadhvi is not easy. Accommodating religious rituals, temple ceremonies is very much part of her political persona, but she doesn't like to talk about it. It's this aspect which reflects her feisty identity. As a Union Minister for Water Resources and Ganga Rejuvenation, Bharti feels this was the best portfolio she could ever had. Umaji, the very fact that Ganga Rejuvenation has been added to the Water Resources Ministry, how are you in your capacity making really things different? The decision Prime Minister took, that he included Ganga, he brought Ganga from Environment Ministry to Water Resource. Right. Because Ganga is a water resource. So now I think the capacity towards Ganga rejuvenation has increased, because AIBP program is there, then FMP program is there, flood management. So the pace at which the things are moving right now, Didi, by when do you really expect that you can really say that now Ganga is a clean river? Today we say that Ganga is one of the 10 most polluted rivers of the world. Right. So our target should be that Ganga should be one of the 10 most clean rivers of the world. Okay. Yeah, that kind of target you can pick. Okay. Cleaning the river Ganga is her topmost priority. But for this, involving all the stakeholders is an onerous task. There are people who are trying to say that in the next 50 years also Ganga would not be clean. So what would you really say when people talk about that? They are suffering with depression. Okay. Yeah. The worst river, worse than Ganga, was Thames. Ganga is at least clean somewhere in some places. Okay. But Thames, from the birthplace to the submergence place, it was the most worst polluted river in the universe. Okay. And it was cleaned.
Back in Jhansi, we get to see the Jhansi fort and also talk about Uma Bharti's preferences in life. दीदी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़ये हुए हैं जिनके बारे में लोग हमेशा जितना भी पढ़ते हो उनको लगता है कि कम है, जैसे कि जब अयोध्या मूवमेंट हुआ था। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वहाँ मंदिर बनाने के लिए सबकी सहमति होना चाहिए, और इसलिए मैं बिल्कुल पूरी आस्था के साथ, प्रोवोकेशन के साथ नहीं, पूरी आस्था के साथ मैंने उस आंदोलन में भागीदारी की थी। और आज भी मैं ये मानती हूँ कि समाधान निकले और वहाँ मंदिर का निर्माण हो। लेकिन जब इस मूवमेंट में आप जब शामिल हो रही थी तो डिड यू हैव एनी आइडिया बेसिकली कि ये इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा? क्या इसके लिए आप या आपकी पार्टी कुछ भी मतलब रेडी थी कि ऐसा कुछ भी हमें इस तरीके का क्रिटिसिज्म पार्टी को सहना पड़ेगा? जो क्रिटिसिज्म था वो एक बहुत ही छोटे सेक्शन का था। अच्छा। और वो छोटा सेक्शन उस समय पे इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया और मीडिया में प्रभावी था। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि आप पहले प्रवचन करती थी, फिर जब आपने इस मूवमेंट में भाग लिया और फिर जब आपको उस तरीके की जब प्रसिद्धि मिली, फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर यू। इज इट रियली ट्रू इन योर लाइफ? नहीं, बिल्कुल गलत। अच्छा। मैं जब राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की हूँ तो मैं सेकंड टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। ओके ओके। तो मेरे लिए जो राजनीति है वो राम जन्मभूमि से पैदा नहीं हुई है, और ना मैंने राम जन्मभूमि के कारण चुनाव जीता है। मैं पहले ही चुनाव जीती हुई थी और बहुत रिकॉर्ड मतों से मैंने रिकॉर्ड बनाया था। जब आपका ये बिजी शेड्यूल होता है, आपका काफ़ी टाइम पूजा पाठ में और उसमें भी जाता है, कैसे टाइम को बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, मेरा पूजा पाठ में बहुत कम टाइम जाता है। मैं तो जितना समय मिलता है उतना करती हूँ, और मेरे ख्याल से भगवान बहुत समझदार हैं। भगवान इस बात को समझते हैं कि कोई आदमी गरीबों की सेवा में लगा हुआ है तो मेरी पूजा नहीं भी करेगा तो चलेगा ही। उमा जी, जो आपका टीनेज था और उसके बाद की जो एक एज थी और जो टाइम जिससे आप गुजर रही थी, जो माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि नहीं लड़कियों की शादी कर दें, obviously you had something else in your mind. Your mission and your objective in life is totally different. But were you not going through the same feelings which normally a girl undergoes? That let's get married, let's settle down with children. You never had this kind of a feeling ever in your life? 21 से 27 साल की वो उम्र होती है जिसमें लड़कियां ऐसा सोचती ही हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं सोचती थी तो मैं गलत कह रही हूँ। आनंदमयी माँ एक देश की बड़ी विभूति हुई हैं, उनसे मैं बचपन से उनके संपर्क में थी, तो मेरे मन की एक धारा चलती थी कि संन्यास लेना है। अच्छा। बचपन से चलती थी वो। और एक धारा जब 15-16 साल की हुई और घर परिवार की बातें चलने लगी कि शादी करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको एकदम नकारा, उसको भी मैंने सोचा। लेकिन और ये बात 21 से 27 साल की उम्र तक चली है। दोनों बातें एक साथ माइंड एग्जैक्टली चली हैं। लेकिन अंत में मैंने फैसला लिया कि मुझे संन्यास लेना है। और जब मैंने फैसला लिया तो मैं 32 साल की थी जब मैंने संन्यास लिया, और मैं सेकंड टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। तो मैंने बड़े स्वस्थ मन से संन्यास लिया। कई बार लोग कहते हैं ना कि कोई कष्ट हो गया जीवन में, दिल टूट गया, कुछ ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा खासा दिल था, दिल में जो चाहिए था वो सब मौजूद था। Whatever I had in my wish list, I could achieve it. But even then, I decided to take sannyas. That's so wonderful. But there are so many misconceptions about your life, and a lot of stories had come out. I don't know. I'm not comfortable in asking you, but nevertheless, there were a whole lot of stories that probably there were so many men with whom you interacted, and there were a lot of stories coming around. But was there anyone very special in your life whom you really liked, and whom नहीं, you मेरे really बारे में thought? ऐसी स्टोरी कभी नहीं आई। आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? Okay. हाँ, कि ऐसा हुआ हो। हाँ, ऐसी आई होंगी कि देयर वर मेनी मेन हु वांटेड टू मैरी मी। Oh really? इट वाज अदर वे राउंड। Okay. बिकॉज आई वाज वेरी फेमस ना। मैं विदेश में भी जाती थी, भारत में भी रहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं आई हैं जैसे आप कह रही हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, आएगी ना, उसमें गलत क्या है? तो कोई ना कोई अगर आपका कोई बहुत बड़ा फैन भी बना होगा। हो गया ना, खत्म हो गई वो बात। बेचारे वो कहाँ होंगे मुझे तो पता ही नहीं। मूवीज जब देखती हैं तो कैसी मूवीज हमेशा देखना पसंद करती लड़ाई हैं? झगड़ा नहीं देख सकती, अच्छा। खून खराबा नहीं देख सकती। ओके। हाँ, झगड़ा टंटा नहीं देख सॉफ्ट रोमांटिक मूवीज? सकती। शांति सी। अच्छा। जैसे मैं मासूम, आप जितनी बार दिखाओ मैं उतनी बार देख लूंगी। ओके। शबाना आजमी एंड हाँ, आज तक देख लूंगी वो। हाँ, लेकिन और म्यूजिक का भी शौक होगा आपको बहुत? हो, मैं तो कई बार तमिल, गाती तेलुगु, थी? कन्नड़ कुछ भी हो मैं सुनती रहती हूँ। ओके। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज? हाँ, मुझे ध्यान भी नहीं होगा कि लैंग्वेज कौन सी है, बस म्यूजिक कान में होना चाहिए। मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकती। लेकिन अगर मैं आपको एकदम से बोलूं कि कोई गाना गुनगुनाने के लिए, तो सबसे पहला गाना कौन सा आपको याद आता है?
ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर मिले, सागर मिले कौन से जल में, ऐसा। ओके हाँ। ओके। आप जिससे बात कर रही हैं ना, वो बहुत ही जिंदा दिल प्रसन्न व्यक्ति है। वो तो मैं इतने दिनों में बिल्कुल जान वेरी गई। बबलिंग पर्सन। आप समझ गई? तो मैं उदास कोने में बैठ के तानपुरा बजाती हुई व्यक्ति नहीं हूँ। चलिए अब चलते चलते एक छोटा सा आपके साथ क्विज खेलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ कोड वर्ड्स दूंगी और आप मुझे उसका आंसर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मिठाई। संदेश। संदेश। उमा भारती को संदेश अच्छा लगता हाँ, है। हाँ। गुस्सा। दुर्वासा ऋषि। अच्छा। ओके। फिल्म स्टार। आपका फेवरेट एक्टर। वो तो बदलता रहता है। जैसे कि हर फेज में अलग अलग कोई हाँ, एक्टर अच्छा हाँ, लगा, जैसे हाँ। कि अब जैसे कि मैं शुरू करूँगी, सनी देओल से शुरू हुआ होगा, और अब आजकल आमिर खान की एक मूवी देखी थी मैंने, कहानी या तलाश, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी थी। अच्छा, वो मुझे अच्छी लगी। ओके। चलिए अच्छा, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन पार्लियामेंटेरियन। राजमाता विजया राजे सिंधिया। ओके। द ऑल टाइम ब्यूटीफुल वुमन। And the most handsome MP in the present government, according to you? मत कह लो यार, फिर दूसरे लोग गुस्सा करेंगे, जल मरेंगे, इसलिए इसको नहीं बताते। Chaliye, I'll have to end the program here. Okay. Thank you so much, Umaji. It was a pleasure having you on It's My Life. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। Chaliye, wish you all the best, Umaji. Thank you so much.